Today, the old financial order is fracturing. Trust is expensive. Oversight has turned into overreach. Privacy is vanishing. And the sovereignty of real economies has long been systemically stripped away. But on the blockchain, a new possibility is taking root. It is driven by consensus, forged by protocol, and carried by civilization. We call it the Origin Digital Civilization Trilogy. Origin, Awakening, Eternity. From the first spark to sovereign awakening to protocol eternity, Origin is the path toward digital self-sovereignty for humankind. In a world where everything is programmable, Origin sparked the first institutional fire. The launch of LGNS bond incentives drew participants into a chain-based economic loop, embedding incentive mechanisms and supply-demand logic into protocol code. Lines of code evolved into an early form of economic order. This was the genesis of the crypto world, a foundational layer of civilization forged by a network of believers. The awakening of civilization is not conquest, it is awareness. Once the incentive flywheel turned and the economic core stabilized, Origin entered its second chapter, Awakening. Here, sovereignty rises and privacy reclaims its place. Users are no longer passive participants. They become the authors of their own assets, identities, and data destinies. The A-stable currency launches, anchoring value beyond the US dollar. The A-Pay system goes live, enabling borderless, permissionless, unfreezable anonymous payments. LGNS bonds continue to fuel the economy in a closed, sustainable cycle. DAO governance evolves into the signer mechanism, replacing vote thresholds with protocol participation rights. This is the true entrance to the ecosystem. It's a time of application rollout, identity awakening, and sovereign reconstruction. We are no longer users. We are signers of the system, builders of consensus. When the ecosystem begins to self-operate, when the protocol gains evolutionary capacity, Origin enters the third chapter, Eternity. This is no longer about growth curves or user counts. It is about sustained coherence, intelligent interaction, and a living, breathing digital civilization. Real-world assets, RWA, are brought on-chain, bridging the arteries of value between the physical and digital worlds. AI and ZK technologies forge a smart, privacy-preserving society. Autonomous metaverses and sovereign identity systems give rise to civilization islands. A protocol world with infinite potential begins to bloom. From the first spark to today's privacy awakening and toward a future of self-evolving digital order, Origin is not just a financial protocol. It is a self-evolving system of on-chain civilization. We now stand in Phase 2, Awakening. This is not merely ecosystem expansion. It is a collective reawakening of sovereign awareness. Detrusting, decentralizing, de-dollarizing. These are not slogans. They are systemic necessities. Origin does more than change how we pay. It awakens a generation's imagination and commitment to digital sovereignty. From ignition to awakening to eternity, this is the trilogy we forged together. This is also the core mission of Origin. To replace authority with contracts, to rebuild order with consensus, and to carry the unfinished dream of human liberty into the age of chain-based civilization. Protocols may evolve, but civilizations endure, and the river of consensus flows ever forward. Origin, the protocol of digital civilization.
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घर के जूम में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज के हमारे टेक्निकल सेशन में। और साथियों, घर के जूम के साथियों का प्रयास यही रहता है कि हमारे जितने भी साथी हैं वर्ल्ड के इस बेहतरीन प्रोजेक्ट ओरिजिन को बेहतर तरीके से सीखें, समझें और इसमें अपनी यात्रा कंटिन्यू जारी रखें जब तक कि हम इसके डाउ रिवॉर्ड्स को प्राप्त करने के हकदार नहीं हो जाते हैं। और डाउ रिवॉर्ड्स एक बहुत ही अद्भुत रिवॉर्ड से है। कहते हैं ना, रिवॉर्ड्स जिसे हम इनाम कहते हैं हिंदी में, तो इनाम उन्हीं को मिलता है साथियों जो उसके लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और लगातार अपने आप में अपडेशन करते हैं, सुधार करते हैं। तो निश्चित रूप से आप जितने भी आप और हम साथी हैं उस डाउ रिवॉर्ड्स को पाने के हकदार हैं। और इसी कड़ी में कई साथियों ने हमारे डाउ रिवॉर्ड्स को एंजॉय किया है और एंजॉय कर रहे हैं। तो उद्देश्य सभी का एक ही होना चाहिए कि जो नॉर्मल रिवॉर्ड्स हैं वो तो सभी साथी बिना काम किए भी कमा सकते हैं, लेकिन जो डाउ रिवॉर्ड्स है एक अद्भुत, बेहतरीन और ज़बरदस्त, उसके लिए हमें सब को प्रयासरत रहना चाहिए। और रही बात साथियों हमारी डिजिटल इंडस्ट्रीज़ की, तो यदि हम बात करें तो इंडिया में अभी बहुत तेज़ी से वर्चुअल डिजिटल असेट्स का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। और जहाँ तक मैं यदि आंकड़ों की बात करूँ तो पिछले पिछले साल क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ऐसा डेटा फर्म चेनालिसिस इंडेक्स के मुताबिक है। और 2024 और 25 के मध्य केवल इंडिया में ही 30,63,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी आई है। और भारत लगातार तीसरे साल दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे है क्रिप्टो को अपनाने में। और इस इंडेक्स में टॉप 20 कंट्रीज में 9 एशियन कंट्री हैं। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और भी कई देश हैं। ट्रेडिंग बहुत सारे लोग कई क्षेत्र में करते हैं, लेकिन अभी जो क्रिप्टो है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में एक नया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाम और तरीका हासिल किया है। और क्रिप्टो का इस्तेमाल वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में अब होने लगा है और बाहर से पैसे भेजने में इसका मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। और कई देशों के लिए बहुत तेज गति से इसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और स्टेबल कॉइन में ही पिछले साल जनवरी से जुलाई तक लगभग 362 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रहा है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अखबारों में छपा हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में है। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन से हमें हमारी इस इंडस्ट्री में मजबूत होने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। और आज के सेशन को संबोधित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं जानदार शानदार हमारे को होस्ट साथी। और को होस्ट साथियों में मैं देख पा रहा हूँ सबसे पहले हमारे भाई ईश्वर शर्मा जी मंदसौर जिले से हैं। गौरव गुप्ता जी हमारे इंदौर से हैं। जितेंद्र सिंह चौहान साहब भोपाल से। नवनीत गुप्ता जी इंदौर से। तो हम आज टेक्निकल सेशन की शुरुआत सबसे पहले गौरव भाई से करेंगे। तो मैं सभी हमारे बीच उपस्थित करीब 475 साथी हमारे साथ उपस्थित हैं अभी, तो उन सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं द ग्रेट लीडर मिस्टर गौरव गुप्ता जी, हु इज़ वेरी टेक्निकली साउंड और बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मिस्टर गौरव गुप्ता जी, सर आप आएँ और आज के सेशन को संबोधित करें। ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त लगभग 450 से ज़्यादा, लगभग 500 का फिगर हम टच करने वाले जूम मीटिंग में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे टेक्निकल जूम सेशन में। और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि जितना ज़्यादा इस टेक्निकल सेशन को हम फील कर सकें,
जितना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का एंगेजमेंट रहेगा उतना बेहतर तरीके से आप और आपकी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को समझ पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सर मेरी स्क्रीन को आप बराबर तरीके से देख पा रहे हैं और आवाज़ भी मेरी क्लियर होगी। क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। तो इससे पहले कि हम हमारे सेशन की शुरुआत करें, हम एक डिस्क्लेमर के साथ हमेशा शुरू करते हैं कि हमारा ये जो जूम सेशन होता है, जितने यहाँ पे हम कंसेप्ट्स को, कैलकुलेशंस को डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारे द्वारा दिखाए गए सारे चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, कैलकुलेशंस किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि जितना इस प्रोजेक्ट को आज तक हमने समझा है, पहचाना है और लोगों से सीखा है, उसको एज एजुकेशन हम इस सेशन के थ्रू प्रमोट करते हैं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ भी आप शुरुआत करते हैं, कुछ आप इनका खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पहले आप सारे प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझ लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद आप शुरुआत करें। अभी तक जो हमारे पास पिछले वीक में जो अपडेशंस हैं, पहले हम उसकी आज बात करेंगे, और कुछ कॉमन सवाल जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक SLGNS टू LGNS की जो स्वैपिंग होती है टू डाई, इसमें कई लोग थोड़ा सा एक गलत तरीके से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देन हमारे पास डिस्कशन का टॉपिक है, वो है जेनेसिस 360 डेज, जहाँ पे हम डाई से स्टेक करके NFT को अचीव कर सकते हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो GLGNS एयर ड्रॉप है, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रॉस चेन LGNS को आप कैसे पॉलीगॉन से अनूबी पे ले जा सकते हैं, एंड अनूबीज के को कैसे आप डाई बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी डायनेमिक स्लिपेज है जो कि चेंज होता है, तो कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसकी हम बात करेंगे। और अभी तक के हम अपडेट्स की बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो लास्ट वीक होगा वो पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। अब सबसे पहला टॉपिक है डिस्कशन का, वो है LGNS टू डाई। यहाँ पे कई लोग एक गलती करते हैं, उसको मैं वॉलेट के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे हम टोकन पॉकेट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अब यूजुअली जब भी आपको LGNS को डाई बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप डैप के ऊपर जाते हैं, हम स्टेक का पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक LGNS को अनस्टेक करूंगा, ये एक LGNS आ चुका है। देन यहाँ पे हम ट्रेड LGNS को ओपन करते हैं, यहाँ पे LGNS को ऊपर लेके इस तरीके से ठीक इस तरीके से हम यहाँ पे मैक्स करते हैं, तो आपको जितना डाई होना होता है इस वक्त, शायद मेरा वॉलेट प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है, देखिए यह हो चुका कनेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LGNS को अगर मैं डाई बनाता हूँ तो कितना डाई मुझे मिलेगा। ऊपर आप रेट भी देख सकते हैं, 3.955 डाई पर LGNS का रेट है। जैसे मैं स्वैप प्रेस करूंगा, यहाँ पे मुझे डाई बन के 5% स्वैपिंग चार्ज के साथ ही कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैंने बताया, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, जो एक बेस्ट पॉसिबल वे है LGNS को डाई बनाने का। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका ना हम रिकमेंड करते हैं, ना ओरिजिन का प्लेटफॉर्म किसी तरीके से रिकमेंड करता है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है, वो इसके अलावा भी डाई बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए बनने को, जब तक सिस्टम के पास कहीं ना कहीं लिक्विडिटी वो हो सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं रहता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं, यहाँ पे वो SLGNS को सिलेक्ट करते हैं और वो SLGNS से डायरेक्ट डाई बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन दे रहा है, यानी कि किसी ना किसी स्वैपिंग ब्रिज के तो ये हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो
स्वैपिंग का परसेंटेज है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये किस तरीके की लिक्विडिटी का इस्तेमाल करता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप एलजीएनएस को डाई बनाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स स्कैनर पे चल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पूल्ड एलजीएनएस और पूल्ड डाई की क्वांटिटी है। पूल्ड एलजीएनएस यहाँ पे 47.5 मिलियन और पूल्ड डाई है 188 मिलियन। तो यहाँ पे एलजीएनएस और डाई दोनों की क्वांटिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप स्वैपिंग का देखें तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीगॉन का क्विकस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो जब हम एलजीएनएस से डाई की बात करते हैं तो क्विकस्वैप के थ्रू यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी है, वहां से स्वैपिंग होती है। यहाँ पे 5% का एक्सटेंडेड डिडक्शन होता है, जिसके आपको पता हो 3 हिस्से होते हैं। 2.1% जाता है बर्निंग में, 2% जाता है रिवॉर्ड पूल में और 0.9% जाता है डाउ को। इसके अलावा जितनी पेयरिंग है उसके ऊपर हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप एस एल जी एन एस से डाई बनाएं, या डाई क्या हो सकता है, आप एस एल जी एन एस से यूएसडीटी बनाएं, आप एस एल जी एन एस से पोल बनाएं। लेकिन इनका स्वैपिंग चार्ज का जो परसेंटेज है वो हमें पता नहीं होता है। तो हो सकता है किसी दिन ही 1% लगे, किसी दिन 10% लगे। कई लोगों को मैंने देखा उन्होंने 50-50% तक का यहाँ पे स्वैपिंग लिया है। तो ये हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, होने को स्वैपिंग हो सकता है किसी रूट से, अगर सिस्टम आपको ले आता है। तो ये ऑफिशियल तरीका नहीं है। जो बेहतर तरीका वो मैंने आपको बताया, वो आपको सिर्फ एल जी एन एस और डाई की पेयरिंग हमारे पास अवेलेबल है। हम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको मल्टीपल पेयरिंग्स मिलती है, जहां पे आप किसी भी टोकन को किसी भी टोकन से स्वैप कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेक्स की। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो बेस्ट तरीका होता है एलजीएनएस को डाया बनाने को मैंने आपको बताया। उसके अलावा कई बार लोग यहाँ से भी एलजीएनएस को डाया बनाते हैं, ये फिर भी ठीक है, बट इसको भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ एक रूट का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अप्रूव एंड स्वैप लिखा है यहाँ पे ब्लू कलर में। इसके नीचे कई सारे ऑप्शन है, स्वैप रेट, मिनिमम रिसीव स्लिपेज, प्राइस इम्पैक्ट, सर्विस फीस। तो यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे ट्रांजेक्ट का ऑप्शन हम देख पा रहे हैं। तो अगर इन केस ये रूट चेंज हो जाता है तो परसेंटेज हमारे हाथ में नहीं रहेगा। और ये सारी सेटिंग्स जो होती है, इसको कई सारे लोग नहीं समझते, इसको चेंज भी नहीं करना उनको आता है। जैसे स्लिपेज का परसेंटेज है, ये सब है। तो इसलिए आपको मेहनत ना करना पड़े। तो डेब्ट के थ्रू करने से ये होता है कि कभी भी किसी प्रकार का आपको एसेट का लॉस का चांस नहीं रहेगा। यहाँ से अगर आप स्वैपिंग करते हैं तो ये आप अपने रिस्क पे करते हैं। हाँ, अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, अगर आप इन पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं तो आप वेल एंड गुड आप करिए। अदरवाइज हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं। कई लोगों के सवाल थे कि स्वैपिंग किस तरीके से हो सकती है। तो स्वैपिंग हर पेयर की एक दूसरे में हो सकती है, लेकिन जो रिकमेंडेड पेयर है उसके थ्रू आप जाएं, क्योंकि हम डेक्स की बात कर रहे हैं। जब हम सेंट्रल एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी अलग तरीके से काम करती है। रही बात जेनेसिस 360 की, तो वापस से हम डैप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है एलो का। तो जेनेसिस 360 बेसिकली एक ऑप्शन है जहां से आप एनएफटी को बाय कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 डाई से ज्यादा का यहाँ पे इनपुट रख सकते हैं। अगर आप 10,000 डाई के साथ इसको करते हैं तो आपको रिवॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे एक एनएफटी भी मिलती है, और उस एनएफटी को आप चाहें तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनएफटी के इस्तेमाल की, तो फिलहाल आज की तारीख में जो भी V1 एंड अबव है उनको एक मैंडेटरी एनएफटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई लोग का एक सवाल रहता है, क्या जिस वॉलेट में हमें एनएफटी की रिक्वायरमेंट है उसी वॉलेट में हमको ये स्टेक करना है? तो बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी वॉलेट में स्टेक कर सकते हैं। आप अपनी टीम में किसी भी वॉलेट के अंदर जाके ये 10,000 डाई से यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। इसके रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो लगभग 30 to 40% का यहाँ पे एक्स्ट्रा एलजीएनएस मिल रहा है। और जरूरी नहीं है कि आप 10,000 डाई से करें, आप 1,000 डाई से, 2,000 डाई से, 100 डाई से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि अगर आप 10,000 डाई से ऊपर से करेंगे तो ही आप एनएफटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर आप 10,000 डाई से ज़्यादा से यहाँ पे इसको बाय करते हैं
तो आपको एनएफटी मिलती है, और कम में करते हैं तो आपको 30 to 40% जो एलजीएनएस है वो तो एक्स्ट्रा यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड मिलता ही है, और डेली आप उसके इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को भी क्लेम कर सकते हैं। गवर्नेंस एनएफटी के ऑप्शन में आप जब जाते हैं, अगर आपके पास एनएफटी होती है तो वहाँ पे एक ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है। उस ट्रांसफर के ऑप्शन से जिस तरीके से आप एलजीएनएस डाई या फिर पॉलीगॉन को P2P करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना है। तो आप किसी भी अगर XYZ वॉलेट में एनएफटी बाय करते हैं तो आप किसी भी दूसरे वॉलेट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप अपने मेन वॉलेट में या V1 वाले वॉलेट में ही इसको बाय करें। आप किसी भी वॉलेट में बाय करके एनएफटी को ट्रांसफर या सेल कर सकते हैं। जीएलजीएनएस एयरड्रॉप की हम बात करें तो एक अनाउंसमेंट था जो 22 को लेट नाइट डाओ के थ्रू हम सभी को मिला था, जहां पे ये बताया गया था कि अवेकन का जो ड्यूल चेन पैरेलल इकोसिस्टम है वो दोनों ही ब्लॉकचेन्स पे प्रॉपरली काम कर रहा है। और अभी लिक्विडिटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रॉपर एलजीएनएस की जो है वो पॉलीगॉन पे भी बनी रहे और अनुबी पे भी बनी रहे, उसके लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन चेन ट्रेडिंग एलजीएनएस ट्रेडिंग इंसेंटिव प्रोग्राम। इसकी हम बात करें तो ये 30 दिनों तक चलेगा, जिसके 3 फेज होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है वो लगभग 5% आपको जीएलजीएनएस देता है, फेज 2 3% देगा, और फेज 3 2%। इसका ये मतलब होता है कि आप जितने से भी शुरुआत करते हैं, लेट्स से अगर हम 100 डाई से करते हैं तो 100 डाई का 5% यानी कि 5 डाई का मुझे जीएलजीएनएस यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड एयर ड्रॉप में मिलेगा। इसी तरीके से जब पहले 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको रिवॉर्ड डिलीवर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ते हैं कि रिवॉर्ड की जो डिलीवरी होगी वो 10 दिन के बाद यानी कि फेज 1 पूरा होने के बाद होगी। फेज 2 जहाँ पे 3% का एयर ड्रॉप है, और फेज 3 जहाँ पे 2% का एयर ड्रॉप है। ये कैसे बाय करना है, अगर पहले हम उसकी बात करें तो वापस से हम टोकन पॉकेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसको मिंट बोलते हैं। मिंट के अंदर आप आते हैं तो आप देख पाएंगे 600 डेज में यहाँ पे एक फायर का सिंबल है, 600 डेज को आपको ओपन करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि पॉलीगॉन चेन एलजीएनएस ट्रेड इंसेंटिव और पार्टिसिपेट में जाते हैं। ये जो पहले के दो ऑप्शन आ रहे हैं ये अनुबिस के लिए, हमको इसको नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है स्टेक ऑन पॉलीगॉन डायरेक्टली, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव एलजीएनएस और अप्रूव डाई आपको डाई के साथ करना है। तो वैसे तो मिनिमम 100 का यहाँ पे बताया गया, लेकिन 200 डाई के ऊपर ही यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं, मिनिमम 200 डाई। और इस तरीके से यहाँ पे अप्रूव डाई करके अगर आप स्टेक करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वो एयर ड्रॉप का जो इस वक्त ऑफर सिस्टम ने हमें दिया है उसको पाने के लिए। फेज 3 वो फेज 3 इसके बाद चालू होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 600 डेज में आपको डाई से पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और जीएलजीएनएस जो होगा वो भी आपको 600 डेज के वेस्टिंग पीरियड में लीनियरली मिलेगा, यानी कि कुछ टुकड़ा जीएलजीएनएस का आपको डेली वहां से मिलेगा, उसको आप क्लेम करके अपने वॉलेट में ले सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और कई बार लोगों को आता है कि लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम को कैसे हम चेक करें। तो डेक्स स्क्रीनर जब आप ओपन करते हैं और एलजीएनएस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो है वो 48.2 मिलियन डॉलर का है। यानी पिछले 24 घंटे में जो पॉलीगॉन का एलजीएनएस है उसका ट्रेडिंग जो है लगभग 48.2 मिलियन पे हुआ है। अब अभी की स्थिति में हम डेक्स टूल्स पे या डेक्स स्किनर पे या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अनुबी के एलजीएनएस को नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल अभी इतना प्रॉपरली नहीं हुआ है। बट इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी डेक्स टूल्स पे भी हम अनुबिस की ब्लॉकचेन को देख पाएंगे। मीनवाइल आपको इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है aave.ai। इसका लिंक जो है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। aave.ai को ओपन करके आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे कई सारी ब्लॉकचेन्स बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इनमें से यहाँ पे अनुबिस का सिंबल आपको दिखेगा, यहाँ पे हॉट लिखा है, इसको आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए एलजीएनएस है, जीएलजीएनएस है, या अदर टोकन्स जो लिस्टेड हैं, है ना। एक बात और, यहाँ पे ये टोकन्स की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी आपकी। अगर नहीं आपको प्रॉपर वेरीफाइड होता है तो आप पहले उसको वेरीफाई करें, क्योंकि कितनी लिक्विडिटी और किसकी और कौन से टोकन में क्या लिस्ट है इसका हमको कोई श्योरिटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एलजीएनएस की। एलजीएनएस आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ओपन करते हैं तो ये देखिए प्राइस यहाँ पे आ चुका है $4.7316 का। यानी अनुबिस की ब्लॉकचेन पे जो एलजीएनएस है उसका लाइव प्राइस हम देख पा रहे हैं।
24 आवर के वॉल्यूम की बात करें तो लगभग $12 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम है। तो अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें हम, तो 48.2 प्लस 12, यानी लगभग $60 मिलियन का बाय सेल डेली का यहाँ पे एलजीएनएस में ट्रेडिंग वॉल्यूम है। लिक्विडिटी की हम बात करें तो उसको आप देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे वो है 376.3 मिलियन की, 376.3 प्लस। और आवा डॉट ए पे भी आप देख सकते हैं पूल साइज यहाँ पे लिखा हुआ है $318 मिलियन। यहाँ पे हम नीचे की तरफ अगर आते हैं तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे ये एलजीएनएस और डाई की क्वांटिटी यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये वो एलजीएनएस और डाई है जो अनुबिस के रॉकेट स्वैप पे लिस्टेड है, यानी 318 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे, प्लस आप करेंगे 318। अब देख सकते हैं लगभग $700 मिलियन के आसपास की टोटल लिक्विडिटी प्रोटोकॉल के पास है, जहाँ पे लगभग 55 to 60% जो है पॉलीगॉन पे है और बचा हुआ परसेंटेज जो है वो अनुबीस पे है। तो यहाँ पे रही बात ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम है या फिर पूल साइज उसको आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट आवे डॉट एआई पे अगर आप यहाँ पे एलजीएनएस को सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही ब्लॉकचेन यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे फर्स्ट हमें पॉलीगॉन का एलजीएनएस दिख रहा है 0F01, ये एक्चुअल एड्रेस है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है 48.75 मिलियन का, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी दिख रहे हैं और टोटल होल्डर्स भी हम देख पा रहे हैं लगभग 2.5 मिलियन के आसपास है। एलजीएनएस हम देख पा रहे हैं अनुबिस का, जहाँ पे 06B8 इसका ऑफिशियल एड्रेस है। इसका वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं लगभग 12.16 मिलियन का। इसका रेट देख पा रहे हैं और होल्डर्स और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम दोनों ही ब्लॉकचेन के टोकन को मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा एक क्रॉस चेन की हम बात करते हैं और एलजीएनएस टू डाई के स्वैपिंग की हम बात करते हैं। तो देखिए बिटगेट में आप वैसे ऑप्शन आता है यहाँ पे, अगर आप चाहें, ठीक है, किसी किसी डिवाइस में थोड़ा सा ये इशू होता है बट ठीक है। अगर आप मोबाइल डिवाइस से करेंगे तो बड़े प्रॉपरली यहाँ पे आप ये जो आइकन है इसको सिर्फ आपको प्रेस करना है और प्रेस करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे कई सारे। उन ऑप्शंस के थ्रू आप ब्लॉकचेन चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी करते तो आप डायरेक्टली डैप ओपन करिए। यहाँ पे मैं पॉलीगॉन का डैप ओपन कर रहा हूँ। स्टेक में जाते हैं। किस तरीके से हम क्रॉस चेन कर सकते हैं उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेक करा, देखिए हमारा एक एलजीएनएस जो अनस्टेक हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं एलजीएनएस ब्रिज का, होम के नीचे, होम के ऊपर अनुबिस अवेकन है, होम के नीचे एलजीएनएस ब्रिज, इसको आप ओपन करें। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको क्वांटिटी एंटर करना, मैं 1 एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अभी तो ब्रिज टू एलजीएनएस लिखा है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने इससे पहले 20 एलजीएनएस को यहाँ पे पॉलीगॉन से अनुबिस में भेजा था। आपको सिर्फ ब्रिज टू अनुबिस करना है। पहले आप कम क्वांटिटी के साथ करिए, और अच्छी बात यह है कि कभी इंस्टेंटली आपको ये नहीं दिखता है तो आपको उसके लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा कभी कभी समय लेता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मिंग लिखा है इस वक्त, तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय भी कई बार इसको लगता है। तो यहाँ पे इस वक्त कंफर्मिंग दिखा रहा है। अगर हम चाहें इसको अनुबिस की ब्लॉकचेन ओपन करके देखें, यहाँ पे ऊपर रॉन्ग नेटवर्क प्रेस करके आप अनुबिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेक में जाके देखते हैं, अब देख सकते हो एक एलजीएनएस मेरा आ चुका है, 1.9 हो चुका है यहाँ पे। पहले यहाँ पे 0.9 था, इसको मैं आपको जाके एंट्री से भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड भी आ चुका है लिखा हुआ, यानी ये जो एक एलजीएनएस था ये प्रॉपरली मेरा
क्रॉस ब्रिज हो चुका है, इसको हम चेक भी करना चाहेंगे तो आप देखिए, अगर हम ये देखिए पॉलीगॉन का एलजीएनएस ओपन करें, उसके एंट्रीज को देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ और एक एलजीएनएस यहाँ से माइनस हुआ है। और अगर हम अनुबिस के एलजीएनएस को खोलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एलजीएनएस जो है प्लस हो चुका है, और ये कहाँ से आया है, नल एड्रेस से ये अनुबिस पे ट्रांसफर हुआ है। अब बात करें अगर हम रिवर्स क्रॉस चेन की, तो रिवर्स क्रॉस चेन में कई सारे अपडेशन भी बाकी हैं। तो एग्जैक्टली यही परफॉर्मेंस आप अगर यहाँ पे जाते हैं और अगर आप ब्रिज करते हैं तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि हम एक एलजीएनएस को वापस से ब्रिज टू पॉलीगॉन कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप करेंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अपडेशन बचे हैं। देखिए एरर आ चुका है, तो अभी आपको क्रॉस नहीं करना है, यानी कि विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, विद इन फ्यू डेज जो होगा, ये अनुबिस से आपको पॉलीगॉन पे ले जाने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप दोनों ब्लॉकचेन में एलजीएनएस को क्रॉस चेन कर सकते हैं, पॉलीगॉन से अनुबिस में भी ले जा सकते हैं और अनुबिस से पॉलीगॉन पे भी ला सकते हैं। बड़ा इजी काम है ये। पर शुरुआत में जब आप नए हो तो एक क्वांटिटी, जो साइज है वो कम रखे, एक या दो या पांच एलजीएनएस से आप ट्राई करिए। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसको बड़े ट्रांजेक्शन से भी कर सकते हैं। अब एक और सवाल होता है स्वैपिंग में, कई लोगों को यहाँ पे इशू आ रहा है। तो देखिए स्वैपिंग चार्ज जो है इस वक्त यहाँ पे डायनेमिक है। अगर हम एलजीएनएस की बात करें पॉलीगॉन पे तो 5% स्वैपिंग चार्ज के साथ वो हमेशा से काम कर रहा और करता रहेगा। लेकिन अनुबिस पे इसको डायनेमिक रखा गया है। ये 5 से 40% तक फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट पोजिशन। अगर मार्केट में पैनिक होता है तो ये परसेंटेज जो है स्लिपेज का, चार्जेस का, बढ़ सकता है। और दोनों ही ब्लॉकचेन में एलजीएनएस का रेट सेम मेंटेन रहे, इसलिए भी इस चार्ज फीस को लगाया गया है। जिस भी दिन दोनों ब्लॉकचेन के टोकन्स का, यानी कि एलजीएनएस जो पॉलीगॉन पे है और एलजीएनएस जो अनुबिस पे, इसका प्राइस सेम हो जाएगा तो स्वैपिंग चार्ज जो मैच कर जाएगा, यानी 5% का ही रहेगा। देखिए इस वक्त अगर मैं चाहूँ और मैं एक एलजीएनएस से डाई बनाता हूँ, तो इस वक्त अगर मैं इसको सिर्फ करूंगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे एक फेलियर की तरफ ले जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अप्रूवल हो चुका। अगर मैं स्वैप को दबाता हूँ तो आप देखेंगे फेल हो चुका है। अगर मैं इसको 10 या 15% पे भी रख के करता हूँ तो भी यहाँ पे ये फेलियर की तरफ ही जाएगा। तो हमें ऐसा क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सेल्फी से आप देख पा रहे हैं 20% है, तो यहाँ पे स्लिपेज को भी हमें 20% पे सेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो सेल फीस है वो नीचे वाले स्लिपेज से मैनेज हो चुका है। अब अगर मैं स्वैप करता हूँ उसको तो आप देखेंगे स्वैपिंग हो चुकी है और वो जो एक एलजीएनएस था वो डाई बन चुका है। यानी कि जो सेल फीस होगी उतना ही आपको स्लिपेज रखना है। जिस दिन ऑटोमेटिक ये 5% पे आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मीनवाइल आपको इसको यहाँ पे जाके मैन्युअली 20 करके कर सकते हैं। अभी 20 पे हो सकता है, कल को ये 15 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता तो आपके स्पॉन्सर अपलाइन से आप कंसल्ट करके भी इसको सीखें। यहाँ पे मैं एंट्रीज दिखा देता हूँ ऑफिस से। तो अब देखिए ये एक एलजीएनएस जो था यहाँ पे, ये ऑफिस से माइनस हुआ है। और अगर हम डाई ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं ये डाई मेरे पास 3.82 डाई बन चुका है। एक ऑप्शन की हम और बात कर रहे थे जिसका नाम है गेल ब्रिज। तो आप गेल ब्रिज को ओपन कर सकते हैं चाहे यहाँ पे स्वैप के ऑप्शन पे आके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रॉकेट स्वैप, कैपिबारा लॉन्च और गेल ब्रिज, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। और कई लोग अगर पॉलीगॉन का डैप ओपन करते हैं तो वहां से भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके ट्रेड एलजीएनएस का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप गेल ब्रिज देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये क्रॉस चेन एक्सचेंज आप देख पाएंगे ट्रेड में, डैशबोर्ड के जस्ट ऊपर एक क्रॉस चेन एक्सचेंज लिखा है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो भी यहाँ पे गेल ब्रिज ओपन हो जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करना रहेगा। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के टोकन्स को अपने आप एक दूसरे में स्वैप कर सकते हैं। कई लोग एक और गलती करते हैं कि अनुबीज में जाके, अगर अनुबीज के डाई से
वो पॉलीगॉन के डाई बनाते हैं तो उसको मैक्स कर देते हैं। तो अगर आप मैक्स करके करेंगे तो ये नहीं होगा। खैर अभी तो क्वांटिटी कम है, आपको मैक्स नहीं करना, क्योंकि गैस फीस में भी अनुबिस का डाई इस्तेमाल होता है, तो हमेशा आप $0.5 या $1 छोड़ के इसको करिए। इस तरीके से जितना आपका बैलेंस है उससे थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस फीस के लिए फिर डाई नहीं बचेगा तो ट्रांजेक्शन होंगे फेलियर में रिजल्ट करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से आपको अनवेरिफाइड स्वैपिंग नहीं करना है। जेनेसिस 360 में आप डाई से पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एनएफटी के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आपके पास 10 या डाई से प्लस होती है तो। अगर उससे कम से करते हैं तो 30 to 40% का जो ऑफर है एलजीएनएस का वो तो आपको मिल ही जाता है। जी एलजीएनएस एयर ड्रॉप की हमने बात करी, जहाँ पे इस वक्त अगर आप डाई से पार्टिसिपेट करते हैं 600 डेज में पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे, तो वहाँ पे आप 5% जी एलजीएनएस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि आपको अगले 600 दिनों में लीनियर वेस्टिंग के साथ पार्ट पार्ट में रिलीज होता है। हमने क्रॉस चेन एलजीएनएस करके देखा किस तरीके से एक एलजीएनएस को हमने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से अनुबिस की ब्लॉकचेन पे ले गए, और वहाँ पे स्वैपिंग करने का तरीका भी देखा कि जब तक ये जो स्लिपेज है डायनेमिक रहता है, यानी कि दोनों की ब्लॉकचेन्स में प्राइस डिफरेंस रहेगा, तब तक आपको स्लिपेज जो है उसको वहाँ पे मैन्युअल एंटर करके कन्वर्ट करना है, ताकि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। अब बात करें हम अपडेट्स की, तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे वैसे तो सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। पहला फंक्शन जो अभी वर्किंग में नहीं है वो क्या, नॉर्मल स्टेकिंग, जिसको हम फ्लेक्सिबल स्टेक भी कह रहे हैं। ये बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा, जहाँ पे एस एल जी एन एस जो है वो अनुबिस का हमको देखने को मिलेगा, जिसको भी आप फिर P2P कर पाएंगे। अभी आपको सिर्फ 360 डेज या फिर 600 डेज का ऑप्शन मिल रहा है अनुबिस पे। दूसरा, जो स्वैपिंग का परसेंटेज है इस वक्त, वो 25% से स्टार्ट हुआ था, वो 20% पे आ चुका है वापस से। वक्त के साथ जैसे जैसे एलजीएनएस का रेट कम होगा या ऊपर जा सकता है फिर नीचे आ सकता है, लेकिन ये दोनों ही ब्लॉकचेन्स के एलजीएनएस के रेट को मैनेज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मेंटेन करने का काम कर रहा है, ताकि आर्बिट्रेज ना हो, कोई भी व्यक्ति एक ब्लॉकचेन से बाय करके दूसरे पे सेल करके सिस्टम की लिक्विडिटी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एलजीएनएस कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आप स्टेक करते हैं अपने टोकन्स को और उसके रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं, या तो P2P में या फिर स्वैपिंग करके। तो ये दो दो अपडेट्स हैं Anubis के, ये आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करें एनएफटी की, तो कई लोगों के मन में सवाल था कि एनएफटी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, तो हाँ, 100% आप किसी भी वॉलेट में एनएफटी को क्लेम करके किसी दूसरे वॉलेट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। विद इन सेकेंड जो है वो ट्रांसफर होता है, और जैसे ही आप आपके टर्बो को डाउ को क्लेम करते हैं वो अपने आप वहाँ पे अटैच भी हो जाता है। हमने बात करी थी Aave.ai की। इसका मैं लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दिया इसका, इसके लिंक को यूज करके आप दोनों ही ब्लॉकचेन्स में प्रॉपरली उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सेशन पूरा होता है, जितने मेरे पास अपडेट्स थे, जो लास्ट वीक के कुछ सवाल थे, कुछ प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे, उसको मैंने करके लाइव यहाँ पे प्रेजेंट करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो ये पिछले आधे घंटे का शेयरिंग रहा होगा, इससे आपको आपकी टीम को पूरी तरीके से सिस्टम को समझने में हेल्प मिलेगी। एक दो सवाल हम ले लेते हैं, देन हम चौहान सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। एक दो सवाल मैं देख पा रहा हूँ कि GLGNS को स्टेक करने का तरीका बताना है वापस से। ठीक है, GLGNS का एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए मैं वापस से एक बार बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। देखिए, टोकन पॉकेट एप्लीकेशन ओपन करा है मैंने। रेगुलरली हम डैप को ओपन करते हैं, यहाँ पे मिंट का जो ऑप्शन है इसमें आप जाते हैं।
मिंट के ऑप्शन में आपको जाना है 600 डेज के अंदर। 600 डेज के अंदर यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम ने ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉपअप बना दिया जहाँ पे लिखा है पॉलीगॉन चेन एलजीएनएस ट्रेड इंसेंटिव। आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। ये जो फर्स्ट दो स्टेकिंग है ये तो अनुबिस के लिए, इसमें नहीं करना है आपको। आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो देख पा रहे हैं आप, अप्रूव डाई लिखा हुआ है। यहाँ पे आप 200 डाई से ज्यादा से अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जितना डाई होता है उसका 5% आपको जीएलजीएनएस एयर ड्रॉप में मिलता है। और ये 10 दिन बाद कैलकुलेशन होगा, हर 10 दिन बाद जब फेस खत्म होगा उसका कैलकुलेशन होके 600 दिनों के स्टेकिंग के साथ ही आपको यहाँ पे ये जीएलजीएनएस का भी 600 डेज का लीनियर वेस्टिंग में रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन एक व्यक्ति का पूछना है कि एलजीएनएस से स्वैप करके डाई बना सकते हैं। बिल्कुल, आप एलजीएनएस को स्वैप करके डाई बना सकते हैं। आप चाहे पॉलीगॉन पे हो चाहे अनुबीस पे हो। अनुबीस पे अभी जो है डायनेमिक रखा गया परसेंटेज को, ताकि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ना हो, लोग एक ब्लॉकचेन से बाय करके दूसरे पे सेल करके सिस्टम की लिक्विडिटी को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन आप दोनों ही ब्लॉकचेन्स में एलजीएनएस को डाई बना सकते हैं। एक सवाल है, अनुबिस की ब्लॉकचेन में स्टेक्ड एलजीएनएस को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में कब कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन आपके हाथ में है। आप जब भी चाहें, ये ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने रिवॉर्ड को और प्रिंसिपल को भी क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी शेयरिंग यहाँ पे पूरी होती है। हमारे होस्ट अशोक सर को मैं इनवाइट करूंगा, सर आप आए और हमारे अगले स्पीकर को इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई आपका, और बहुत ही शानदार जानदार प्रेजेंटेशन रहा आपका। और कई साथियों के कुछ कुछ सवालात बने हुए हैं, तो ज़रूर हम उन सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर रेडी हैं, मिस्टर जितेंद्र सिंह चौहान साहब। तो जितिन भाई हमें इस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे मैकेनिज्म, कई बारीकियाँ उससे अवगत कराते हैं। तो हम रुक करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर भाई जितेंद्र सिंह चौहान जी की ओर। जितेंद्र भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। और बढ़िया, एकदम से कुछ चीजें जो क्लियर नहीं थी वो गौरव गुप्ता जी ने भी क्लियर कर दी हैं। और डेफिनेटली दोस्तों, नहीं है, इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस लगती है। और डेफिनेटली कभी कभी हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो टेक्निकल्स होते हैं, इनको रात रात भर जागना होता है। मुझे याद है वो दिन जब सिस्टम आईएलओ से स्टार्ट हुआ, तो गौरव सर, अखिलेश शर्मा सर, दामोदर गेरे सर, अशोक जोशी सर और महाजन सर, ईश्वर सर, ये सब लोग अपनी अपनी जगह स्टडी कर रहे थे और रात रात भर जग रहे थे और अर्जेंट में मीटिंग बुला के सब लोगों को समझा रहे थे। तो अगर कुछ, और आप देख रहे होंगे पिछले 2 महीने से, लगभग अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, और लगातार हमारे पास कुछ ना कुछ प्लस में अपडेशन आ रहे हैं। और बहुत ही शानदार अपडेशन है। और बाकी बाकी इसमें मेहनत लगती है। इसको आप लोगों को जो चीज 5 मिनट या गौरव सर ने आधे घंटे में जिस चीज को सिखाया, उसको सीखने में भी एक एक वीक तक लग जाते हैं। लेकिन ये क्यों लगते हैं? क्योंकि डाउ कम्युनिटी से किसी के पास कोई फोन नहीं आता, किसी के पास मेल नहीं आता, सिर्फ ट्विटर के ऊपर आता है। और वो जितना बताते हैं फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस करने के बाद ही इन चीजों को सिखाया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच गौरव सर, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज सिखाई। चलिए दोस्तों, अब आगे के कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और डेफिनेटली आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। और पहले मैं एक बार बिटगेट वॉलेट को चालू करके पूछना चाहूंगा कि क्या मेरा, क्या है कि मैंने बहुत सारे लोग डाल दिए तो कभी कभी ये आता नहीं था। तो सर क्लियर मेरी क्लियर। स्क्रीन आ रही है? यस क्लियर। आज मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है, तो मैं बस इसको ओपन हम करके गाड़ी देखना चला चाहता हूँ। रहे आप बताइए, ये स्क्रीन आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, दिख रही है। चलो, थैंक यू वेरी मच। टोकन पॉकेट को भी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब भी हम अनुविश पे जाते हैं
पहली चीज तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को, मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को सिखाया था कि यहाँ पे आप लोग इसको चेक करिए अनुविस के ऊपर, और यहाँ पे आपको क्वाइन को ऐड करना होता है, याद रखिएगा। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अपना अ, इस्तेमाल करता हूँ। ऐड करना आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर आपकी। ये कोई फिर दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, व्हाट्सएप का मैंने बंद करके रखा हुआ है एक्चुअली में। तो दोस्तों 6 तरह के लिंक्स होते हैं। इन लिंक को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये आपको व्हाट्सएप में ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे करना है LGNS। तो आपको यहाँ से मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, वो आप लोगों को अपने सीनियर्स के माध्यम से मिल जाएंगे, और मैं चैट बॉक्स में भी इसको डाल देता हूँ। 1 मिनट, ये 6 तरह के जो लिंक है इनको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पे पेस्ट किया। चलिए पूरा पेस्ट कर देते हैं। 1 मिनट, पहले पूरे को कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं ये डाल रहा हूँ आपके सामने, ये लिंक मैंने आपको डाले हैं। अब ये जो लिंक है, यही हमारे पास डाई का इसको करना है, LGNS का करना है, SLGNS का करना है, GLGNS का करना है, एक वाइन का करना है, और USDT का करना है। ये सभी लोग अपने कॉपी करके और अपने व्हाट्सएप पे डाल लीजिए इसको। सबसे पहले ये काम अपन पूरा कर लेते हैं, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और गौरव सर ने भी भेजा हुआ है, जो आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक। पर पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, और Aave.ai को भी आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। चलिए, आप लोगों ने इसको डाल लिया होगा। मैं अब एक एक करके अपना लिंक लाता हूँ। सबसे पहले मैं डाई का लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास डाई ऑलरेडी है। और इसको जाते हैं हम टोकन पॉकेट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अपना वो भी चालू कर लेता हूँ। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास डाई ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है हमें नए क्वाइंस को लाने के लिए। तो या प्लस के निशान पे जैसे ही हमने क्लिक किया, तो यहाँ लिखा है कस्टमाइज टोकन। कस्टमाइज टोकन पे जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर लिखा एड टोकन। एड टोकन पे जब हम क्लिक करते हैं, एक्चुअली में बहुत ये मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपके पास नहीं आएगा, आपको एड टोकन करना होगा। एड टोकन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा अकाउंट। ये है डाई वाला। इसको जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे लिखा है सिंबल। अब इस पे जब मुझे सिर्फ क्लिक करना है ओनली, डाई लिखा हुआ आया नीचे। यहाँ पे डेसिमल लिखा आ गया 18। अब मुझे क्या करना है, नीचे कंफर्म करना है। तो चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि मैं आपको बता चुका था, तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा लेके चलते हैं। अब दूसरा कौन सा लेते हैं, सेकंड नंबर का हमारे पास आ जाता है LGNS। ओके, LGNS को मैंने LGNS के एड्रेस को कॉपी किया है, कस्टमाइज में गया हूँ, एड टोकन पे गया हूँ, यहाँ अकाउंट पे पेस्ट किया, सिंबल पे क्लिक किया, तो यह LGNS लिखे आ गए, और यहाँ पे डेसिमल में 9 लिखा गया। इसको जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, अब ये भी ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसे जो मैंने आपको 6 प्रकार के दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये एक है। अब मुझे इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, मुझे तो सिर्फ प्लस के निशान को क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो दिख रहा है ना सब। एक्चुअली में क्या है, कभी कभी मेरे स्क्रीन दिखता नहीं है। यस यस, क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे मैं USDT को प्लस से माइनस कर देता हूँ, एक वाइन को प्लस से माइनस कर देता हूँ, GLGNS को प्लस से माइनस कर देता हूँ, LGNS को प्लस माइनस कर देता हूँ, SLGNS को कर लेता हूँ, डाई को कर लेता हूँ। ये सारे मैंने कर लिए है। तो अब मुझे अनुवीस के अंदर ये सारी चीज अब शो कर रही है इस समय पे। अब क्योंकि इस आईडी के ऊपर मैंने कुछ डाला नहीं है, तो एक्चुअली में ये आपको यहाँ पे कोई भी टोकन शो नहीं करेंगे ना। इस आईडी के ऊपर डाई है, आईडी वही है, पॉलीगॉन के ऊपर आईडी है,
ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको जब क्लिक प्लेस करता हूँ, तो ये सारे टोकन इसके अंदर है। पोल है, एलजीएनएस है, डाई है, एल जे एस एलजीएनएस है, यूएसडीटी एक्वाइन इस आईडी पे नहीं है। बट इसी को मैं डायरेक्टली इधर पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अनुबीस की चेन है। याद रखिएगा, ये अनुबीस की चेन है। तो ये सारे आपको करना है। अनुबीस ऐड करना मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, अगली बार भी बताएंगे। और अनुबीस को ऐड करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कि इस आईडी का 12 कीज आपको निकालना है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि मी पे जाके 12 कीज निकालिए, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और प्लस के निशान को दबाना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है अनुबीस नेटवर्क। तो यहाँ अनुबीस लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाता है अनुबीस। ये आ गए यहाँ पे, तो सॉरी, अनुबीस यहाँ पे आ गया, अनुबीस चेन। इसको सिलेक्ट करके अपने इंपोर्ट वॉलेट करिए और अपने 12 कीज डाल के अपना वॉलेट बना लीजिए। ये सिंपल सी प्रोसेस है, जो कि पिछले सेशन में अच्छे से बताया था। अब इसमें मैंने आप लोगों को ये चीज आपको फर्स्ट थिंग बताया। अब दूसरा चलते हैं अपन आईडी के ऊपर। देखिए, यहाँ पे दो तरह से आप आईडी ओपन कर सकते हैं। पहला, जैसे मैं डिस्कवर पे क्लिक करता हूँ और जब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अपने पास यहाँ पे ओरिजन है, अवेकन है। अवेकन से जाएंगे तो सीधा अंदर इंटर कर जाएंगे। ये अवेकन पे गए, साइन बाय वॉलेट किया, कंफर्म किया, और ये अवेकन पे चले गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिख रहा है 22 फ्रेंड हैं इसके ऊपर। रिवार्ड 1.775 रिवार्ड, यानी कि अपना स्पाइडर वेब रिवार्ड। 4 एक्टिव मेंबर्स भी दिखा रहा है इस आईडी के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा है पॉलीगॉन में कितना स्टेक्ड है, तो 39 एलजीएनएस स्टेक्ड है इसके ऊपर। एनर्जी कितनी है? 6 एनर्जी इसके अंदर ऑलरेडी शो कर रहा है करंट में। और स्पाइडर वेब रिवार्ड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्पाइडर वेब रिवार्ड 1.775। अब चूंकि मेरे पास एनर्जी है ऑलरेडी, तो इसको मैं इस क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, बिजनेस शो करता है डायरेक्ट कितने लगाए हैं। एक्टिव 4 है, लेकिन 22 लोगों को डायरेक्ट लगा चुके हैं। 1800 की टीम दिख रही है दोस्तों। ये चीज को बाहर निकल के भी हम देख सकते हैं। अब आप एक बात और आती है, जो कि हम लोगों ने देखी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। मैं जाता हूँ पॉलीगॉन की चेन पे। यहाँ से मैं जब स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आज क्या है, 2 एनएफटी मेरी टीम वाले लोग खरीद रहे हैं। तो उनके लिए मैंने डाई बना के रखा है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं तो आज 2 एनएफटी मेरी टीम के लोग खरीद रहे थे $20,000 की। तो आज वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उनको, नहीं तो मैं लाइव उनको दिखा था। मेरी आईडी पे कर नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि फंड किसी और का है। 600 डेज मेरी आईडी पे हो जाएगा, तो मुझे उन्हीं को करवाना था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, चलिए। नहीं तो आज लाइव आपको दिखाने के लिए अब हम ओरिजिन के माध्यम से चलते हैं। ओके, और यहाँ पे आप एड्रेस चेक कर रहे होंगे, 34DA। इस एड्रेस को जब आप चेक करते हैं, तो आप लोगों को स्पाइडर वेब रिवार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। हमें वहां पे डालना होता है, क्योंकि अभी मैं इस पे देखता हूँ, तो मैं स्टेक पे जाता हूँ। जैसे अभी गौरव सर ने बताया था कि ये स्टेक का बटन है आपके सामने, इसको देख पा रहे होंगे। इस पे स्टेक अनस्टेक पे जाते हैं। अनस्टेक पे मैं 10 एलजीएनएस को अनस्टेक करता हूँ। यस, ये 10 एलजीएनएस मैंने अनस्टेक किए आपके सामने। यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे 13 एलजीएनएस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये 13 हो गए। अब यहाँ से आपने ब्रिज का इस्तेमाल किया था इस समय पे, तो हम भी ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। इस जगह पे आप देख रहे होंगे, तो ये ब्रिज का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। अब ब्रिज के इस्तेमाल पे मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ अपने 10 एलजीएनएस। ये 10 एलजीएनएस मैंने डाले थे, और यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। तो
बिल्कुल पिछली बार भी मैंने 10 का किया था, जो कंप्लीट दिखा रहा है ऑलरेडी, उसकी डेट दिखा रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कंफर्म लिखा गया है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये कंफर्म तो कर दिया सिस्टम ने, कंप्लीट करना है अभी। तो जब तक ये कंप्लीट होता है हम लोग चलते हैं आवेदन पे। आवेदन पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क दिखाता है, इसको अनविश पे क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो ये हमारा नेटवर्क आ गया है। अब ये एलजीएनएस हम कहाँ देखते हैं? अब चूंकि हम इधर ला तो सकते हैं, लेकिन वापस उधर ले जाने में अभी फिलहाल में ब्रिज काम नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, मजे की बात भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे हम इस 10 एलजीएनएस को अगर ले जाएंगे वापस, तो अभी फिलहाल में शो नहीं कर रहा है इधर से, 2 ही एलजीएनएस शो कर रहा है। कोई नहीं, हम लोग तब तक स्टेक पे देखते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेक पे अगर शो कर रहा है अपने 10 एलजीएनएस, जैसे कि गौरव सर ने अभी आप लोगों को बताया था कि कभी कभी ये 1 से 3 घंटा ले सकता है, 1 से 3 घंटा, क्योंकि इसमें पुराने 2 एलजीएनएस पड़े हुए हैं। हाँ, इसमें एक अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सभी लोग अनुबीस पे शिफ्ट हो रहे हैं, पॉलीगॉन से अनुबीस पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि पॉलीगॉन से अगर अनुबीस पे शिफ्ट हो रहे हैं, और चूंकि एलजीएनएस अब पॉलीगॉन उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, एक रास्ता हमारे पास तो ब्रिज करने का था जो अभी चालू नहीं हुआ, और दूसरा जो रास्ता है हमारे पास वो है, हम लोग जो गौरव सर ने बताया स्वैपिंग का, कि यहाँ से आप एलजीएनएस को ऊपर करके और यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक छोटा सा कैलकुलेशन को समझिएगा कि गौरव सर ने यहाँ पर 4.74% पे सेल आउट किया। इस कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो एक एलजीएनएस के बदले में आपको इतने डाई मिलने चाहिए थे। और चूंकि हमारे पॉलीगॉन के ऊपर अभी रेट चल रहा है लगभग 3.794, तो इसका सिस्टम ने 20% तो काट ही लिया। 5% जो हमारा स्लीपेज चार्जेस लगता है, तो लगभग 25%, यानी कि 1.85, इसको माइनस कर देते हैं 1.185, तो -1.185, तो मिलना चाहिए कितना? सर, तीन पॉइंट स्लिपेज पचपन स्लिपेज जो है ना उसके साथ में एडजस्ट हो रहा है अभी, तो वो बीस अच्छा, परसेंट में फिलहाल में। स्लिपेज भी आ गया है, वो पूरा कंप्लीट है ओ, वो। ओके ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। दोस्तों ये तो और मजे की बात हो गई, यानी कि चार्जेस 15% ही एक्स्ट्रा लग रहा है, स्लिपेज उसके साथ ही हो गए, तो 20% को ही करेंगे। और जब 20% को 0.94 माइनस करते हैं, 0.94, तो लगभग 19 3.82 सर के पास आया। और यदि आप अगर 3.94 को करते आप 5% से, तो 19 पॉइंट कम होता। अब देखिएगा 19 पॉइंट, इसमें भी 0 माइनस 0.19 कम करते, तो अभी आप देखेंगे कि बढ़ के मिल रहा है। अगर आप वहां से लेते हैं, हमारा मकसद क्या है, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अभी आपने देखा कि गौरव सर ने एक एलजीएनएस को किया, तो आई थिंक उनको 3.82 आया, और अगर आप पॉलीगॉन पे करते हैं तो 3.75, यानी कि कहाँ फायदा हो रहा है आपको? उधर ही हो रहा है अनुविज पे। अब बात आती है, तीसरा रास्ता भी है यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता ये है कि यदि मेरे पास एलजीएनएस हैं, ऑलरेडी एलजीएनएस है यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास स्पाइडर वेब रिवार्ड आता है, हमारे पास डाउ रिवार्ड आता है। अब चूंकि हम उसे क्लेम कर देंगे, लेकिन उसको हर बार हम 5 इतना बड़ा चार्जेस हम 15% और 5% देने की बजाय हम अपनी टीम के ऊपर काम करते हैं, तो हम उसको ट्रांसफर बाहर से कर सकते हैं। यहाँ से आप जाइए, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास 12 एलजीएनएस हैं ऑलरेडी, 12 एलजीएनएस है। तो मैं अपना एड्रेस अनुदिश का इधर का भी उठा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपने, अब ये मैं समझ लो मेरी डाउनलाइन की आईडी है, इसका मैं रिसीविंग एड्रेस उठाता हूँ, ये कॉपी किया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अभी हम P2P कर ही रहे हैं,
सभी लोग P2P कर रहे हैं, 90% लोग P2P करते हैं, 10% लोग ही सिर्फ अपना किसी कारणवश निकालते हैं, या बचे हुए लोग अपने डाई टरबाइन करने के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैं इस आईडी पे हूँ, और यहाँ से मुझे LGNS को पहुंचाना है, सॉरी ये आईडी पे अब मुझे ये LGNS पहुंचाना है। इधर शो कर रहा है, देखिए 12 LGNS इधर शो कर रहा है ऑलरेडी, दो पहले के पड़े थे, 10 LGNS मैंने आपके सामने पहुंचाया। अब मैं अनुविश टू अनुविश ट्रांसफर करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एड्रेस पेस्ट किया, और 10 LGNS को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ। ये मैंने इधर किया, डोंट थ्रो अगेन, अनुविश चेन, कंफर्म, अंगूठा लगाया, और ये 10 LGNS सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गए। अब आप एक प्रॉब्लम से तो फ्री हो गए। कौन सी चीज? कि हम P2P नहीं कर पा रहे थे। हमें क्या चाहिए? हमें नहीं जाना है उधर से लेके तो आना है, लेकिन अगर उधर का ब्रिज चालू नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं है। अभी गौरव सर ने एक चीज बता दी कि आप उसको निकाल सकते हैं विथ प्रॉफिट, आपको फायदा इधर ज्यादा मिल रहा है अनुबीज पे, अगर आप उसको डाई में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा रास्ता क्या है? अगर आपके पास LGNS बन गए हैं, क्योंकि आप जब स्पाइडर वेब रिवार्ड करोगे, जब आप डाउ रिवार्ड को करोगे, क्लेम करोगे, तो आपको जब आप एक्स्ट्रा इनकम को क्लेम करोगे, या इनकम को क्लेम करोगे, या फिर आपका प्रिंसिपल को क्लेम करोगे, जो आप 600 डेज या 360 डेज में डालेंगे, तो आपके LGNS बनेंगे। याद रखिएगा, ऐसे LGNS नहीं बनते हैं, LGNS बनेंगे। तो LGNS को, अब चूंकि LGNS बन गए, अब वहां पे 360 डेज में किसी को करना है 200 LGNS, 100 LGNS जनरली, तो आप अपने सीनियर को, अपनी डाउन लाइन को, अपने ग्रुप को, अपने क्रॉस लाइन को, या जो भी LGNS में शामिल है, उनको अनुविश टू अनुविश ट्रांसफर कीजिए ना। सिंपल, ये चालू हो गया सिस्टम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे उसमें अभी 2 NFT परचेस करने का है। आज ही उसको, अभी आफ्टर जूम में उसको परचेस करूंगा। तो उनका एक ही सवाल था कि सर जब ये बेच ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो डाई बना लीजिए। अगर डाई नहीं बना सकते कि सर वो तो चार्जेस लग रहा है डाई पे, तो फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। पॉलीगॉन से तो अनुविश पे आप प्रॉफिट में हैं। और एक्स्ट्रा की अगर बात करें कि अगर आपको ये चार्जेस नहीं देना है, तो भी आप सामने वाले से डील कर लीजिए। हमारा रेट क्या चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ से परचेस कर सकता है। हम जाते हैं इसके ऊपर, तो हमारा रेट चल रहा है 3.95। 3.95 आपका रेट चल रहा है। अब आप 3.95 पे आप परचेस करके अनुबिस पे जाते हैं, तो या तो आप तो इसी रेट पे काम कर रहे हैं। डाई बना रहे हैं तो भी आपको इनका और इनका कंपैरिजन में आपको अनुबिस का फायदा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपको सेल आउट करना है, अपने सीनियर को करना है, अपने ग्रुप को करना है, अपने जिनको भी करना है, तो अगर आप डाई ना बना के और अपना ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के इसी रेट पे उनको देते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये स्लीपेज चार्जेस पूरा का पूरा बचेगा। डाई बना के भी किसी न किसी को बेचना ही होता है। डाई बनाना इन द सेंस कि आपको आवश्यकता डाई की दो ही जगह है, या तो अनुविश में दोबारा लगाना, या फिर आपको उसको सेल आउट करके अपना INR बनाना। तो आपको यहाँ पे INR भी नहीं बनाना, अपनी टीम को ट्रांसफर करिए। अब देखते हैं क्या उधर हमारे पास आ गया है। यस, तो इधर हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा आपके पास 10 LGNS आ गए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन माय लाइफ इन अनुबिस। दोस्तों, ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन है, और आपके सामने मैंने उसको सक्सेसफुली करके भी बताया। यानी कि अब हमें P2P का काम खत्म, हमें अपने टीम को आपस में देन लेन करना चालू करना है। अब आप अगर अनुबिस से ही स्टार्ट करेंगे, तो आपको बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उस रेट पे आप डील कर सकते हैं जो अनुबिस का रेट है। अगर डिडक्शन करके भी डील करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि स्लिपेज पूरा का पूरा बचना है। तो ये हमारा एक फेस है जिसने हमें बिल्कुल आसान कर दिया। और जब ये आया तभी से मैंने लोगों को पॉजिटिव किया, और पॉजिटिव करने के बाद आज मेरे पास अब 2 NFT का फंड आ चुका है। 2 NFT, थोड़े कुछ समय बाद NFT की लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि V1 है तो ही NFT आपको रखना है। NFT को V1 बनने के पहले भी आप रख सकते हैं, क्योंकि नुकसान तो कुछ है नहीं। आप फायदा देखते हैं, नुकसान नहीं है तो फायदा क्या है। चलिए, हम
आईडी को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि अभी हमारे पास रेट जो चल रहा है 10,000 डाई का, ये लिखा मैंने 10,000 डाई और डिवाइडेड बाई 3.95, तो मेरे को कितने एलजीएनएस मिलेंगे? आई थिंक 2531। इस फिगर को याद रखिएगा, 2531.64 ये हमें मिल रहा है। अब याद रखिएगा 2531.64, 2,031। अब इसी को अगर हम वहां परचेस करते हैं तो यहाँ पे रेट चल रहा है 4.74, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2109 यहाँ पे मिल रहा है। अब 2109 में से माइनस करते हैं हम 2531, तो 421 का हमें माइनस दिख रहा है, यानी कि इतने एलजीएनएस कम आ रहा है, लेकिन साथ में एक एनएफटी आ रही है। लेकिन अब बेनिफिट समझिएगा कि ये जो हमें मिले हैं 2109, इसको वापस से कर लेते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 4.74, यही रेट है। अब इसमें हमें लगभग 30%, ये कम ज्यादा होता रहेगा, याद रखिएगा। अभी मैंने चेक नहीं किया, आई थिंक गौरव सर अभी 70% ही मिल रहा है, 30 का ही मिल रहा होगा। नहीं, अभी आप इसको लगभग 14,000 डाई का मिल रहा है। 14,000 का हम्म। मतलब कितना कितना परसेंट बढ़ा दूं इस पे? 40? हाँ, इस पे ऐसा मत करो, आप तो 14,000 को डिवाइड करो आप तो। ठीक है, 14,000 को डिवाइड किया दोस्तों आपके सामने, और हाँ, फोर अब पॉइंट सेवन मैं फोर कर से देता हूँ 4.74। हाँ, अब आप लगभग इतने हो देखिए जाएंगे। अब कितना कॉइन मिल रहा है, अब 2953। अगर पॉलीगोन पे आप लेने जाते हैं तो पॉलीगोन पे आपको मिलते हैं 2531, 422 कॉइन का बेनिफिट हो रहा है आपको इस समय अनुबीस पे खरीदने पर। शर्त इतनी है कि लॉन्ग टर्म में लगाना है, तो ये तो कोई बड़ी बात शर्त नहीं है, क्योंकि हम आए ही लॉन्ग टर्म में लगाने के लिए, आज लगा के कल निकालने तो आए नहीं। इंटू कर लेते हैं इसी रेट से 4 क्योंकि अभी सेल नहीं कर रहे हैं तो रेट हम 4.74 ही मानेंगे आज का। तो 2 लाख रुपए का 2,000 डॉलर। और दोस्तों इस समय डॉलर मैंने कल ही परचेस किया 102 में, अब क्या करूं मैं? तो 2,04,312 रुपए का प्रॉफिट है। 10 लाख के एलजीएनएस परचेस करोगे 12 लाख रुपए के आपको मिलेंगे, 14 लाख रुपए के आपको मिल रहा है। मैं पॉलीगोन के कंपैरिजन, वैसे तो आपको 14,000 डॉलर के मिल रहा है, लेकिन थोड़ा रेट बड़ा है तो भी आप फायदे में हैं। और एनएफटी मिल रही है आपको, वो एक अलग फायदा है। एनएफटी जो कि लॉन्ग लाइफ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम आएगी। अभी तो सिर्फ V1 के लिए अभी स्टार्ट हुई है, V1 V2 से लेके V6 के लोगों के लिए। आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, मैंने एक बार बहुत पहले बताया था कि एनएफटी जस्ट लाइक एक पासवर्ड होता है। एनएफटी एक तरह का हमारा एक आईडी है, वो ये हर उस जगह पे काम आएगी। अभी मेटावर्स आने वाला है, मेटावर्स में एंट्री करने के लिए लोगों को एनएफटी की जरूरत पड़ेगी। अब मेटावर्स जिस समय चालू होगा उस समय, अब मेटावर्स एक अलग ही दुनिया आ रही है। जितनी बड़ी आज दुनिया आप देख रहे हैं पूरे संसार की, वो सारी डिजिटल दुनिया आ जाएगी, तो उसमें भी एनएफटी की जरूरत तो आपको पड़ेगी। तो अभी तो सिस्टम के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, 12-14 प्रोजेक्ट अभी से चालू हुए हैं। अभी कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, एक सिर्फ ब्लॉकचेन लॉन्च करने में कितने सारे प्रोजेक्ट इसके चालू हो चुके हैं। दूसरा चीज, अभी उसने अभी गौरव सर ने जैसे आपको बताया है कि आप यहाँ पर अपना 5% GLJNS भी ले सकते हैं, यानी कि $100 का लेंगे आप। 100 तो बात ही नहीं करेंगे हम, 200 की बात करेंगे। तो 200 की अगर आप लेंगे, 200 से आप बात किया कीजिए, तो इसका 5%, तो $10 के GLJNS मिलेंगे। फिलहाल GLJNS का रेट, ये स्टार्ट $50 से स्टार्ट हुआ। फिर पहले लोगों को यहाँ पर एयर ड्रॉप के रूप में मिला, फिर इसका रेट आया और आज वो लगभग 80-90 हज़ार डॉलर की कहानी पे वो पहुंच चुका है। लेकिन आज भी अगर आप लेते हैं तो कल गौरव दामोदर गेरे सर ने जैसे बताया था कि GLJNS की भी बर्निंग होगी। 2,10,000 तो मात्र GLJNS है, और उस पर भी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और बर्निंग हो जाएगी, जीएलजेनेस की कमी आएगी। और जीएलजेनेस है गवर्नेंस टोकन है, जो कि हर जगह काम आने वाला है। इसके रेट बढ़ने वाले हैं, बिटकॉइन के रेट को तो उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन हमें किसी को क्रॉस नहीं करना है। वो मदर करेंसी है एक्चुअली में, वो पूरे वर्ल्ड इसको इस्तेमाल कर रहा है। हमारी कम्युनिटी 24 लाख लोगों की है, और वो बिटकॉइन की कम्युनिटी 2 अरब लोगों की है दोस्तों, 200 करोड़ लोगों की है। तो हमें किसी को क्रॉस नहीं करना है,
हमें हमारा काम करना है, वो उनका काम कर रहा है, लेकिन आप समझो बात को कि जीएल जीनिस की वैल्यू कितनी होने वाली है आने वाले समय में, ये बहुत भयानक होगा। चलिए, लेकिन आप $10 का भी आप लेते हैं तो एयर ड्रॉप में लेना है। आप चाहो तो $10 का डायरेक्टली परचेस करने का सिस्टम भी इसमें आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में एयर ड्रॉप का फायदा लो, इसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन पूरा पढ़ के आप इसको काम करिएगा। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको समझाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, जो 10 एलजीएनएस मैंने आपको ट्रांसफर करके दिखाए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का था कि हम किसको देंगे। अब सभी के पास अनुविष है, आज सभी के पास अनुविष के वॉलेट्स हैं, सबके पास टोटल के पास वॉलेट बनाने हैं। फीस का याद रखिएगा, हमेशा डाई की फीस लगेगी। और एक छोटा सा डाई बनाने का भी आपको एक मैकेनिज्म में आपको दिखा देता हूँ। जनरली लोगों को डाई का मैकेनिज्म जाने के लिए मुझे पॉलीगॉन पे ही जाना होगा, और जैसे ही मैं पॉलीगॉन के ऊपर जाता हूँ तो दोस्तों यहाँ से साइन बाय वॉलेट, ओके। अब मेरे पास सर पॉलीगॉन की एक डाई चीज और सबसे, अपडेट कर दीजिए आप कि ये जो एनएफटी के लिए ना एग्जैक्ट 10,000 डाई से ना करें, थोड़ा 50-100 डाई ऊपर, 100 डाई कम से कम ऊपर रखें, 10,000 100 डाई से करें ताकि आप थ्रेशोल्ड के थोड़ा ऊपर यस, रहें। बिल्कुल बिल्कुल। गलती से अगर आपका एक डाई, आधा डाई, 10 डाई, 15 डाई, 20 डाई, चार्जेस वगैरह ये कम हो गया, और 10,000 डाई की जगह अगर थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो गया, देखिए संभावना बिल्कुल सही कही गौरव सर ने कि 10,000 डाई की जगह 9,999 डाई रह गए तो आपको एनएफटी नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए 10,100 का, सिंपल फार्मूला। कोई जब जहां आप 10,000 डाई लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए से ऊपर का फंड लगा रहे हैं, तो 10,000 और इसका कोई नुकसान नहीं, इसका तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। थैंक यू गौरव सर, जो बहुत अच्छी जानकारी दे दी, और ये मेरे दिमाग में भी आ गया, मैं भी गलती करने वाला था, क्योंकि मेरे पास ले दे के 20,000 की डाई है। तो अब मैं उसमें और 200 डाई मिलाऊंगा, और 10,200 डाई से, 10,100 डाई से मैं एनएफटी लेने वाला हूँ। तो मैं अपनी टीम को दिलवाने वाला हूँ एटलीस्ट। और उनसे टीम को दिलवाने के बाद वहां पर ट्रांसफर भी होता है, याद रखिएगा। वो 2 डाई एनएफटी क्या करेंगे, वो अपने किसी को भी दे सकते हैं, जिनका उनका मन हो वो दे सकते हैं ऑलरेडी। तो चलिए, दूसरी बात हम लोग कर रहे थे कि क्या हमें, बहुत सारे लोगों का सवाल है, और गौरव सर ने अभी बताया भी आपको कि हमारे पास यदि डाई है तो हम डाई को क्या, अनुविष की डाई कैसे बनाएं, डाई को अनुविष का डाई कैसे बनाएं। तो यहाँ सिंपल सी है, स्वेप पे जाए, ये स्वेप पे आ गए। स्वेप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अनुविष ब्रिज। अनुविष ब्रिज पे इंटर जब करेंगे तो ये आपका एक नया सिस्टम खुल के आ गया। अब यहाँ पे ऊपर दिख रहा है पॉलीगॉन, इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डाई सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे पास डाई ऑलरेडी है, और इस पे मुझे डाई बनाना है, एक डाई रखना है। देखिए, चार्जेस के लिए 1, 2, 5, 10 डाई तो आप रख के ही रखिए, एटलीस्ट इतनी डाई तो आपको रखना है। आप 10 डाई रखेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, 10 के 10 कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एटलीस्ट 5 डाई करता हूँ, और ये मैंने 5 डाई अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इसमें कुछ डाई तो हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी कुछ डाई तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। बेक करने में पूरा ही बेक हो जाता है जनरली। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो मेरे पास कुछ डाई ऑलरेडी हैं। ये फ्लेक्सिबल पे जाके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कौन सी कौन डाई को किधर चेक करना है। स्वेप पे ही जाके देखते हैं। आप स्वेप पे देखिएगा, 4.29 मेरे पास डाई ऑलरेडी हैं। ये रेट नहीं है, रेट ये है, ये बैलेंस में है। अब इसी डाई को, और ये डाई रखने हैं कम से कम 4-5 डाई तो रख के रखिए अपने ट्रांजेक्शन के लिए। और अब मैं आपको यहाँ पे शॉप के ऊपर ही जाना है, और नीचे जाना है आपको इंटर पे। इंटर पे जैसे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने डाई को सिलेक्ट किया,
यहाँ पे डाई सिलेक्ट करेंगे तो डाई याद रखिएगा, ये पॉलीगॉन का सिंबल डाई लगा है, यहाँ पे अनुबिस का डाई है। यहाँ पे जब भी किसी चीज को चुनेंगे, यूएसडीटी चुनेंगे तो यूएसडीटी ही बनेंगे। और यहाँ पे यदि आप पोल चुनेंगे तो पोल ही बनेंगे, लेकिन हमें अनुबिस की पोल की आवश्यकता नहीं है, हमें है डाई की आवश्यकता। तो हम सिर्फ डाई बना रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पे 5 डाई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 ही डाई, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं कन्वर्ट करने का, और ट्रेड कर दिया, कंफर्म कर दिया, अप्रूव कर दिया, ये कर दिया आपके सामने। अब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये देखिए। फिर से उसने कंफर्म मांगा, क्योंकि पॉलीगॉन चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पोल कॉइन कटेगा। हम बना किसका रहा है, ये ट्रेड हो रहा है, ये सक्सेसफुली हो गया है आपके सामने। और अब ऊपर देखते हैं जरा, तो जब भी हम इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, और इधर से 62 हो गए, ये कम हो गए और इधर बढ़ गया। एक चीज और याद रखिएगा, यहां से अगर आप इसमें भेजेंगे, यानी कि इसको ऊपर नीचे करेंगे, अनुबिस को इसमें करेंगे, पॉलीगॉन की डाई पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने कल की है इसमें, तो मुझे कभी कभी 1 1 2 2 घंटे का टाइम लगा। तो अगर कोई भी करते हैं तो फोन मत लगाइए सीनियर को, उसमें टाइमिंग आता है। यहाँ पर आप जाएंगे हिस्ट्री पे, जब क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री पे ये सब प्रैक्टिस की मैंने ऑलरेडी, ये डाई मैंने करे, ये करे, ये करे। तो गलती से मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यहाँ पर आपके सामने पॉलीगॉन से अनुबिस किया, अनुबिस से मैं पॉलीगॉन कर रहा था, बीएससी सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे, ऑटो मोड पे बीएससी सिलेक्ट होगा, इसमें चला गया, तो मुझे 3 आवर्स इसका टाइम लगा, लेकिन आ गया। फिर मैंने बीएससी से फिर अनुबिस किया, अनुबिस तुरंत आ गया, और फिर अनुबिस से मैंने पॉलीगॉन पे शिफ्ट किया, तो इसमें 3 घंटे फिर लगे। आप देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिखा देता है वो, 1 से 2 मिनट। अब चूंकि 1 से 2 मिनट हुआ, तो ये आ गया जनरली आपके सामने। तो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। ओके, चलिए, मेरा सेशन भी पूरा हुआ, ये लास्ट पे ही था एक्चुअली में। तो थैंक यू वेरी मच अशोक सर, एंड आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमारे पास अभी मेरे साथ या कोई भी है तो प्लीज वेलकम। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद जितिन भाई आपका, और बहुत ही बढ़िया शानदार आज का सेशन रहा। और निश्चित रूप से हमारे जितने भी साथी हैं उनको आज के मैकेनिज्म को देखने, सीखने, समझने से बहुत से हमारे प्रोजेक्ट में काम करने में आसानी होगी। और आज दामोदर गेरे साहब हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। गेरे साहब कहीं और मीटिंग में हैं, ट्रेवलिंग में हैं, तो इस वजह से वो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यदि हम लेना चाहें तो ले सकते हैं किसी के। कई साथियों ने तो वैसे चैट बॉक्स में तो काफ़ी कुछ लिख दिया था, और यदि इसके अलावा किसी साथी की कोई जेन्युइन चैट बॉक्स के क्वेश्चन है। जवाब दे देंगे तो सर बेटर रहेगा। चैट बॉक्स के जवाब में क्या है कि बहुत सारे लोगों ने लिखे होंगे, और एक एक आंसर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी जी जी, वैसे तो गौरव भाई ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं इन लोगों को, डाई बनाकर एलजी से वो भी बता दिया है, और बाकी जो सवालात किए हैं कई लोगों ने, टैक्स स्किनर की लिक्विडिटी के बारे में भी बता दिया था। किसी ने पूछा है कि 600 डे में स्टेकिंग में 1200 डाई पे 5% के हिसाब से 60 जी मिलेगा क्या? नहीं भैया, इतने नहीं मिलेंगे। 5% 1200 डाई का नहीं, वो परसेंटेज अलग है, वो टोटल के ऊपर का है। वो आपको 0 पॉइंट कई 000 में मिलेगा। वो सिस्टम से 10 दिन में रिसीव हो जाएगा। किसी साथी ने पूछा है कि मीटिंग क्या डेली होती है? बिल्कुल होती है, सुबह 9 बजे और रात्रि 9 बजे। संडे को रात्रि में नहीं होती है। और आईएलओ में जो जीएलजीनेस मिलता है वो कब मिलेगा? तो जिन्होंने आईएलओ में पार्टिसिपेट किया है वो 2-4 दिन में उनके पास में आ ही जाता है। हाउ टू चेंज डाई टू यूएसडीटी अनुबीज एंड यूएसडीटी अनुबीज कैन बी विड्रॉन थ्रू मर्डरेक्स। अब इसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, जब तक कि हमारा पूरी तरह से सिस्टम लाइव नहीं हो जाएगा तब तक कि आपको वेट करना होगा। 600 दिन में स्टेकिंग बिल्कुल हो रही है। चलिए जोशी अभी सर, ज़्यादा जी जोशी सर, टिंकू सरकार उपलब्ध है, अगर वो कुछ नई जानकारी देना चाहे तो पूछ लो।
टिंकू भाई यदि आना चाहें तो आ सकते हैं। टिंकू भाई, टिंकू भाई, टिंकू भाई, आज टू अनम्यूट। आपकी आवाज़ सुनी बहुत दिन हो गए, केवल बात सुनी लेते हैं। आपको अनम्यूट किया है टिंकू भाई। टिंकू सरकार जी, टिंकू सरकार जी, आपको आज टू अनम्यूट किया है। यदि आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है तो आप उठा सकते हैं। लगता है टिंकू भाई उपलब्ध नहीं है सर। तो चलिए, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है और किसी के कोई और सेशन इतना। जी। उनका कोहोस्ट बना दिया टिंकू सरकार जी को। तो टिंकू सरकार जी को बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन टिंकू सरकार जी शायद माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर, हम आज का सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। हमारे स्पीकर्स का सेक्शन हो गया, हमने क्वेश्चन आंसर सारे ले लिए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का इतनी देर तक बने रहने के लिए। और बहुत बहुत विशेष धन्यवाद हमारे गौरव जी का और जितेन भाई का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज के सेशन को संबोधित किया। तो बने रहिए साथियों घर की जूम में, सुबह 9 बजे और रात्रि 9 बजे। रविवार को रात्रि 9 बजे सेशन नहीं होता है। और नेक्स्ट वीक से, कल से हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे घर की जूम में। जितेन भाई, आप होस्ट हैं, आप सेशन क्लोज कर सकते हैं सर। ओके ओके। तो दोस्तों इसी प्रकार के सेशन में आपको बने रहना है, आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। और आपने 2-3 टेक्निकल सेशन अटेंड कर लिए। सप्ताह में हमारे पास 3 टेक्निकल सेशन, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं। और 3 तो हो ही रहे हैं कंपलसरी, गुरुवार रात को, शुक्र शनिवार सुबह 9 बजे, और रविवार के दिन 10 बजे। तो आप इसमें वो सब सीख जाएंगे जो आप चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ पे बने हुए ऑल पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ में थे, और कोहोस्ट साथी जो देख पा रहा हूँ ईश्वर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कल मुझे ये सारी चीजें सिखाई थी, और हम दोनों डिस्कस करके आपस में एक दूसरे से सीखते हुए आज आप लोगों के सामने हमने प्रैक्टिस की, और आपके सामने कुछ जो भी हम सीख पाए वो दिखाया। योगेश पाराशर जी, थैंक यू। आप हमेशा पूरे वीक दोनों टाइम बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जोशी सर एज यूजुअल हमारे हर सेशन पे बने रहने वाले, सबसे ज्यादा जूम अटेंड करने वाले अशोक जोशी सर, आपको बहुत धन्यवाद जो आप बने रहते हैं। और गौरव गुप्ता जी, बहुत शानदार आज आपने आपको हम लोगों को सिखाया, और सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी हमारे बने रहते हैं, सोहन सिंह गुर्जर साहब हमारे साथ बने रहते हैं, और जितने भी कोहोस्ट साथी हैं वो सभी, उसके अलावा ऑल पार्टिसिपेंट सीनियर सर और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। हल्का फुल्का टेक्निकल आपको सबको देखने को मिलेगा, और वही चीजें आपके काम की है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए वर्किंग पे लग जाइए, और जो फार्मूला आज आपको दिया है इससे अब आप 10-10 हज़ार डॉलर का बिजनेस उठा सकते हैं। अब आपका बिजनेस बड़ा हो गया है, तो अब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट गेन करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।